Hello everyone. Students, we have already discussed about cube, cuboid and cylinder. Now we are going to start from right circular cone. ठीक है, हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ेंगे. Cone is the shape of like this. You have also seen many type of conical shapes around you, like ice cream cone, birthday caps, etc. Okay, what is the we have already discussed that this is the height of the cone, this is radius of the cone, and this is the slant height of the cone. If you are given the radius height, you can easily find the slant height of the cone by using Pythagoras theorem, where these two lines are forming 90-degree angle, so under root r square plus h square would be equals to slant height L. Fine. So what is the curved surface area of a cone? Curved surface area of a cone is pi r L. Pi r L. Pi r L is the formula of curved surface area of cone. ठीक है. Now if we have to find the total surface area of cone, what will be the formula? To find total surface area of cone, we have to first add curved surface area plus the area of the base. Now what is the curved surface area? We have already discussed that curved surface area is pi r L and area of base is pi r square. So taking pi r as common, I can write r plus L. So the formula for total surface area of cone would be pi r plus L. Beta, you have to remember these formula. These formulas are very crucial, very important. ठीक है, so you have to remember them. Okay. See beta, we are going to discuss this question. Read out this question. A cone of slant height 25 cm has a curved surface area 550 cm square. Find its height. देखिए बेटा, see, you are given that slant height हम किससे डिनोट करते हैं? L से. Slant height is given as 25 cm. Curved surface area is कितना है? 550 centimeter square. These all are given to you. You have to find the height. आपको हाइट निकालनी है कोन की. ठीक है, ये सब आपको गिवन है. देखिए कैसे होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल. यही था. कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी 550 है. pi multiply r we don't know and L is 25. On substituting the value, I can write 550 upon में pi multiply 25. This is the value of r. r की वैल्यू आ गई. I can write this. On solving it, I could write 550 multiply 7 upon में 22 multiply 25. ठीक है, कैंसिल करेंगे इन्हें 2 से, 11 से कैंसिल करेंगे दोनों को. 2 जा और ये 50, ये क्या आएगा? 25 कैंसिल. तो ये वैल्यू फॉर आर वुड बी 7 सेंटीमीटर. आर की वैल्यू क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर. आपका रेडियस आ गया कोन का 7 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट. अब देखिए कोन किस शेप में होता है? ऐसे होता है ना कोन. ये होती है हाइट, ये होता है रेडियस और ये होती है स्लांट हाइट. ये आपको दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ, ये निकालना है. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड द हाइट, द फॉर्मूला वुड बी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. व्हाट इज एल? 25 का होल स्क्वायर. व्हाट इज आर? 7 का होल स्क्वायर. दिस वुड बी द फॉर्मूला ओनली. So on solving it, I would get 625 minus 49. So h square की या फिर h की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 576, which be equals to 24 centimeter. So your height would be 24 centimeter. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. यू शुड बी वेरी अटेंटिव अबाउट दैट. इनके फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. सी बेटा, next question is, the radius and slant height of a cone are in the ratio 3:5. If its curved surface area is 2310 centimeter square, you have to find the radius. ठीक है, चलिए देखते हैं इसे. बेटा, we are given that the ratio of radius and slant height is 3:5. This is given to us. ठीक है, और हम रेशियो को डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं. इफ़ I cross multiply it, I would get the value of r that 3l upon में 5. ये l इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. I would get the value of r as 3l upon में 5. फाइन. सो हमें क्या दिया हुआ है? हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है. कितना है?
2310 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें दिया हुआ है. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वी हैव नोन द वैल्यू ऑफ आर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर हेयर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर हेयर. ओके, चलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल इक्वल्स 2310. फाइन. पाई मल्टीप्लाई आर. आर की वैल्यू कितनी है? 3l अपॉन में 5 मल्टीप्लाई एल इक्वल्स 2310. ठीक है. अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या करूँगी? एल स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी. यहाँ से क्या आ जाएगी? 2310 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई 3. फाइन. ऑन substituting the value of pi I would get this. पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रख दी. 2310 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई 3. ऑन सॉल्विंग दीज वैल्यू आई वुड गेट एल स्क्वायर इक्वल्स 35 का होल स्क्वायर. जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 35 का स्क्वायर. सो यू कैन राइट द स्लांट हाइट वुड बी 35 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट 35 है तो द वैल्यू ऑफ आर वुड बी 3l अपॉन में 5. 3 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 5. ऑन कैंसलिंग इट बाय 5 आई वुड गेट द रिजल्ट आर वुड बी 21 सेंटीमीटर. दिस इज योर रेडियस. दिस इज योर आंसर. ठीक है, समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से. चलिए मूव टू द नेक्स्ट. हाँ जी बेटा, सी दिस क्वेश्चन. A conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. If the cost of 1 meter square canvas is ₹70, find the cost of the canvas required to make the tent. ये कह रहे हैं कि ये conical tent है. ठीक है, वो कितना है? 10 मीटर हाइट है उसकी, 10 मीटर ऊंचा है. और जो बेस का रेडियस है बेटा वो 24 मीटर है. ये आपको गिवन है. आपको क्या करना है? उसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है. सबसे पहले तो आपको ये करना है. देन यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैनवास. क्या करना है? आपको उस टेंट को कैनवास से बनाना है तो आपको उस कैनवास की कॉस्ट बतानी है. अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज़ का है. ठीक है, चलिए देखते हैं इसे. देखिए बेटा, देखिए हाइट ऑफ टेंट. कितनी है हाइट ऑफ टेंट? 10 मीटर. दिस इज इक्वल्स टू h. और हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है. रेडियस ऑफ टेंट, ये रेडियस ऑफ बेस यू कैन से कितना है? 24 मीटर विच इज इक्वल्स टू r. यू हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट. व्हाट इज स्लांट हाइट? आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिस इज h, this is r and this is l. This is slant height. So what is the formula for slant height? Formula for slant height would be r square plus h square. What is the value of r here? 24 का whole square plus what is the value of h here? 10 का whole square. Fine. So 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 10 का क्या होता है? 100. तो l की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट 676 विच इज़ इक्वल्स टू 26 मीटर. तो आपकी सबसे पहला आपका हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व. यू हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट. दिस इज योर स्लांट हाइट. ठीक है, सबसे पहला पार्ट सॉल्व हो गया आपका. दिस इज योर स्लांट हाइट. उसके बाद देखिए यू हैव टू फाइंड, उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? अब देखिए टेंट है, कोई टेंट है, वो क्या उसका ये वाला जो हिस्सा होता है यही होता है ना टेंट से बना हुआ, कैनवास से बना हुआ. नीचे तो कोई कैनवास नहीं बिछाता, यही होता है. तो हम इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, है ना. तो हम क्या करेंगे? इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल. पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई व्हाट इज़ आर? 24. व्हाट इज़ एल? 26. ठीक है. On solving this, I would get 13728 upon में 7 meter square. This would be your curved surface area. ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है. You can multiply it. Okay. You have to find the cost of. आपको कॉस्ट निकालनी है. तो देखिए ये कैनवास का एरिया आ गया आपका. ये क्या है? एरिया ऑफ कैनवास. क्या है ये? एरिया ऑफ कैनवास. अब देखिए 1 मीटर की कॉस्ट आपको दे रखी है. कितनी है? ₹70. देन 13728 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 13728 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 70. ऑन कैंसलिंग इट आई वुड गेट
137,280 rupees. This is your cost. ठीक है, समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से. सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, यू हैव फर्स्टली फाइंड द हाइट, देन यू हैव कैलकुलेट, यू फर्स्टली यू आर गिवन हाइट, देन रेडियस, यू हैव फाइंड द स्लांट हाइट बाय पाइथागोरस थ्योरम और बाय द फॉर्मूला ओनली, देन you have calculate the curved surface area. After calculating the curved surface area, you have known that the curved surface area is equals to the area of canvas only. So 1 meter square का आपको कॉस्ट दिया हुआ ₹70, तो एरिया ऑफ कैनवास कितना है, इतना है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट. फाइन, आपका रिजल्ट आ जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ नेक्स्ट देखिए. यस बेटा, नेक्स्ट कम्स द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. बेटा अभी भी हमने कर्व सरफेस एरिया डिस्कस किया है, टोटल सरफेस एरिया डिस्कस किया है कोन का. इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी बाय टुमारो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनसीईआरटी से उसे अच्छे से रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज को. ठीक है, इसके बेस के सभी क्वेश्चन. नाउ द फॉर्मूला कम्स फॉर वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन? The formula is 1/3 pi r square h, या फिर यू कैन से 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. व्हाट इज r here? r is the radius of the base and h is the height of the cone. फाइन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी से ज़रूर करेंगे. यू हैव टू डू इट वेरी थरली, वेरी थरली. ओके, देन विल डिस्कस द असाइनमेंट. ओके, now question number 1 is find the volume of right circular cone if the radius is 6 and height is 7 centimeter. Now let's see it. See beta, radius आपको दिया हुआ है, radius is 6 centimeter, h is 7 centimeter. Volume, if you have to find the volume, what is the formula? 1/3 pi r square h. What is the value of pi? 22/7. r 6 multiply 6, h 7. 7 से 7 कैंसिल, 3 and 2. फाइन, कैंसिल करना समझ आ गया सबको. आपने 7 से 7 कैंसिल किया, 3 से आपने 6 को कैंसिल किया, आपका 2 आ गया. ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग इट what would be the result? 22 multiply 2 is 44. If you multiply 44 by 6 you would get 264. ठीक है, 264 सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट ध्यान रखेंगे आप लोग, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट का हाफ मार्क होता है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, आप यूनिट ज़रूर लिखेंगे. तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. ठीक है, विल डिस्कस some many questions in our next class. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. You can revise your NCERT then by doing the assignment that I have given you in the last class. Okay, thank you so much.